Okay, hello everyone. Can you see this board? Good afternoon, sir. Yes, sir. So we started diffraction in the last class. And diffraction fundamentally means that it's the deviation of light from its true path if you put some obstacle in the path of light. यदि लाइट के पाथ में आप ये ऑब्स्टेकल लगेंगे तो जो लाइट का डेविएशन होता है यही फिनोमेना डिफ्रैक्शन है. And we can see this phenomena to a good extent for some particular experiment like single slit diffraction or double slit diffraction. जो एक्सपेरिमेंट है सिंगल स्लिट या डबल स्लिट डिफ्रैक्शन के उसमें फिनोमेना और अच्छे से देख भी सकते हैं, राइट? We discussed in last class also that if we put two slits, यदि हम दो स्लिट्स यूज करें तब हमें क्या दिखाई देगा? इंटरफेरेंस या डिफ्रैक्शन? I mean, is it double diffraction or single interference? Let us say we have a screen here. So किस तरह का आउटपुट मिलेगा? आउटपुट लाइक दिस, जो आप पढ़ चुके हैं पहले, जिसको हम इंटरफेरेंस कहते हैं. Means uniformly spaced fringes of equal brightness or equal darkness or two individual diffraction pattern, या ये मिलेगा. So one diffraction मिलेगा इसके सामने, एक डिफ्रैक्शन मिल सकता है इसके सामने, something like this. Same here. I call it interference, and obviously for interference you need both the slit. दोनों स्लिट होंगी तब इस तरह का पैटर्न बनता है. For diffraction pattern you need just one slit. डिफ्रैक्शन पैटर्न के लिए एक स्लिट चाहिए, बट यदि हम दो स्लिट यूज करें तो क्या मिलेगा? क्या इस तरह का पैटर्न भी मिल सकता है क्या हमें? इसे हम कहते हैं डबल डिफ्रैक्शन. Yes, sir. Yes, क्या sir. कंडीशन है कि आपको डबल डिफ्रैक्शन मिलेगा या इंटरफेरेंस मिलेगा, ये देखने की? डबल डिफ्रैक्शन देखने के लिए आपको क्या चेंजेस करने पड़ेंगे यहाँ पर? Sir, Yes. the wavelengths of the two lights from the two different slits have to be different if you want double diffraction. Let us say monochromatic light is coming. एक ही वेवलेंथ है जो दोनों पर आ रही है. And it is coming from infinity. So these are parallel light rays. Can you produce interference in your room? क्या आप अपने घर पर भी इंटरफेरेंस बना सकते हैं? Let us say take sun as a coherent source and ये रूम है आपका, and let us assume you have two window, एक यहाँ पे विंडो दूसरी यहाँ पर है, and sunlight are coming from this side. If you open both the window, can you obtain some interference pattern on this wall? क्या इस वॉल पर कोई इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा? Yes, sir. If the slits are small enough. और यदि स्लिट्स स्मॉल नहीं है तो? Slit means the size of the window, huh? You mean this size? Yes. Let me call it B. तो एक नाम देते हैं. So the size of window is B. This size is also B, and the separation between two windows is small d, and this distance is capital D.
So you are saying that you will see the interference pattern if B is small. कितना small होना चाहिए? What is the suitable value of B for interference? हमने क्या वैल्यू चूज की थी? Maybe sir, order of wavelength. Okay. So when you drive the formula for interference, B की क्या वैल्यू थी वहां पर? Did we choose any value of slit width? क्या slit की width का कोई वैल्यू हमने चूज किया था? क्या इस सेपरेशन की कोई बात की थी हमने उस टाइम? No sir. No, sir, no specific parameter. So we simply ignored B. हमने B को उस टाइम इग्नोर किया था, right? और in some sense we assume that B is the smallest number in this setup. B इतना छोटा है कि वो किसी भी नंबर के कंपैरिजन में इग्नोर किया जा सकता है, right? So B was tending to 0 for interference. And then we get this. But let us say B has some finite value. मान लीजिए B का भी कुछ साइज है तब. Let us say B is 2 millimeter. और if we do not ignore this bit, यदि इस bit को हम इग्नोर ना करें, तब क्या होगा? Double diffraction. Then we will get a pattern like this, दो diffractions. So the question is, for what value of B, B की क्या वैल्यू है जिसके आगे जाने पर आपको डिफ्रैक्शन दिखेगा और पीछे आने पर इंटरफेरेंस दिखेगा? So good technique is that we again do the same task. इसको फिर से करें and do not ignore this bit. इस bit को ignore ना करें इस बार. And let us see क्या आंसर मिलता है आपको. And once we get the answer, we will set this B tends to 0 limit. And we will verify whether we get the interference phenomena or not. एक बार हमें जनरल रिजल्ट मिल जाएगा, then we will try to check interference किस कंडीशन में मिलता है. Okay. So this is what we are going to do, and we will start with single slit only. पहले हम single slit में effect देखेंगे, then we come to double slit, and then we will come to n slits, where n can be any number. So we will discuss single slit diffraction. Yes. Sir, for double diffraction, it is necessary for both the light to be coherent. Yes. Because if they are not coherent, then let us discuss about this region where we have intensity from both the slits. Okay. If these two sources are coherent, let us say they are not coherent. मान लेते हैं coherent नहीं है. So slit S1 will produce its own diffraction. Slit S2 will produce its own diffraction. As long as these two diffractions are far away from each other, यदि दोनों diffractions एक दूसरे से बहुत दूर हैं, then it does not matter whether these sources are coherent or not. But let us say these sources are very close to each other, यदि sources बहुत पास हैं, and if they are not coherent और coherent नहीं हैं, तब क्या होगा? What is their joint intensity at any point? जो दोनों के बीच का रीजन है, जब दोनों की इंटेंसिटी आएंगी, क्या वहां पे आप कैलकुलेट कर पाएंगे फाइनल इंटेंसिटी क्या है? If these are not coherent, you do not know what is the phase difference between these two waves. दोनों का जो combined effect किसी point पर होगा, वो आप नहीं कैलकुलेट कर सकते, right? So you will see some pattern here, right in front of S2. You will see some pattern in front of S1, but बीच में there is no pattern. Okay. If they are coherent, यदि coherent हैं, then you will get some pattern between S1 and S2 also. आपको S1 और S2 के बीच में भी कुछ pattern मिलेगा. So for diffraction also, you need both the source to be coherent. So before we come to the single slit diffraction, there are several techniques you can
produce a diffraction due to single slit. Let us say this is the slit. And I make a quite big size of the slit width. मैंने slit की width को ज़्यादा दिखाई है, but actually it is small, so I magnified the view. There are several ways you can make diffraction. Case one is put source at infinity. जो source है आपका, इसका slit से distance infinite है, and you put screen. ये screen है यहाँ पर, ये distance भी आपकी infinite है. क्या मतलब इस बात का? I am assuming that the light which fall on this slit, जो light rays इस slit पे fall करती हैं, they are parallel. Okay. And after passing through this slit, इस slit से pass होने के बाद जो light different directions में जा रही हैं, I am looking at these light from a large distance. मैं इनको बहुत ही दूर से देख रहा हूँ. और इनफैक्ट आई एम रिसीविंग पैरेलल लाइट्स. जो यहाँ पे मैं इंटेंसिटी मेजर कर रहा हूँ वो पैरेलल लाइट की वजह से है. ओके, दिस इज केस वन एंड दिस इज कॉल्ड Fraunhofer diffraction. क्या कंडीशन है? सोर्स इज एट infinite direction, sorry, infinite distance from slit, and screen is at infinite distance from slit. दूसरा केस भी पॉसिबल है क्या? सोर्स इज एट सम फाइनाइट डिस्टेंस. सोर्स को बहुत दूर मत रखिए, पास ही में रखिए. और इसका मतलब क्या है? The light which fall on this slit are not parallel. Light parallel नहीं है, they are non-parallel beams. Okay. Screen भी बहुत दूर नहीं है. Screen is also quite close. Screen यहाँ कहीं है. So at any point, यदि आप किसी point P पे intensity देखना चाह रहे हैं, it is a contribution of all the light which are not parallel, जो कि parallel नहीं है. Obviously, this case is little bit difficult to deal with. पैरेलल लाइट्स को डील करना आसान है, नॉन पैरेलल्स थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा. दिस केस इज कॉल्ड पैरेलल डिफ्लेक्शन. और इन अदर वर्ड्स, यदि आपका सोर्स पास है या स्क्रीन पास है, देन यू विल हैव टू चेंज योर फॉर्मूला और योर डेरिवेशन. आपका जो पुराना फॉर्मूला था वो काम नहीं करेगा, आपको फिर से दोबारा से इंटेंसिटी कैलकुलेट करना होगा. Source is at finite distance from slit. And screen is also at finite distance from slit. So we will discuss the easiest case first. हम सबसे पहले इस केस की बात करेंगे जो समझना आसान है. मीन्स हमारा सोर्स भी इनफाइनाइट पर है, स्क्रीन भी इनफाइनाइट पर है. कैन वी पुट सोर्स एट इनफाइनाइट? क्या कोई तरीका है सोर्स को इनफाइनाइट पर रखने का? यस. सिंगल स्लिट फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन. एक स्लिट है हमारे पास और सोर्स इनफाइनाइट पर है. कैसे रखें? Convex lens के first focal Yes. point. Yes. So when we say infinite, we actually means that we want parallel light rays. उसके लिए ऐसा नहीं है सोर्स इनफाइनाइट पे ही लेके जाना पड़ेगा. Use some technique so that you can get parallel light rays. So सोर्स को पास में ही रखिए and put a lens in path of the light at the distance of focal length की distance पर.
so that the light you will get are parallel. जो light आपको मिलेंगी ये parallel होंगी. If we look from a large distance, यदि हमें किसी large distance से देखेंगे, then we will receive nearly parallel light. But if we see from a large distance, the intensity will decrease a lot. जितना दूर से देखेंगे उतना intensity कम मिलेगा. So how do we generate a case where we are close? कोई ऐसा तरीका है situation create करने का कि हम पास भी हो and we receive parallel light rays? The idea is this: put a telescope in front of you. एक telescope के through आप इन सब patterns को देखिए. So let us say lights are going in all direction. You see from here, and this is a telescope. Telescope क्या करता है? It receives parallel light rays. There is a convex lens inside it. इसके अंदर एक convex lens होता है. And all these light rays are focused at focal point. Okay. So we look at from here. हम यहाँ से देखते हैं. Okay. So we are actually receiving parallel light rays. So that's how we can generate a condition for Fraunhofer diffraction in lab. I can show you also. We have this experiment in our lab. And it's a quite small setup. Can you see diffraction somewhere? Here. So in this setup, we actually generate diffraction pattern of white light. यहाँ पे हम एक white light का diffraction pattern देखते हैं. So you can see there is a white light source. इसके अंदर एक bulb है, which is nearly white. And this is the diffraction setup. सिर्फ इतना सारा. Okay. On the left hand side, you can see one cylindrical object. आपको cylindrical object दिख रहा होगा black color का. एक cylindrical object right में भी है. The left side has only one purpose. क्या काम है उसका? To create parallel light ray. Right side का काम क्या है? To gather all the parallel light ray and bring them on a focus. So the left hand side part is called collimator. जो left hand side का part है इसे collimator कहते हैं. ये distance कम ज्यादा करके आप focal length पर lens को set करते हैं. And this telescope on the right hand side, जो right hand side में telescope है, this can rotate. अभी स्केल्स वगैरह सब भूल जाइए, उनकी जरूरत नहीं है हमें. बता सकते हैं ये क्या है या किसी ने इसको पहले कभी देखा हो? ग्रेटिंग नाम सुना है कभी? Yes, sir. Name सुना. Yes, sir. क्या होता है ग्रेटिंग? इट लुक लाइक ए ग्लास प्लेट. कुछ ग्लास प्लेट जैसा दिख रहा होगा आपको यहाँ पे. बट दिस इज नॉट ए ग्लास प्लेट. एक ग्लास प्लेट नहीं है. ग्रेटिंग इज दिस. हम डिस्कस भी करेंगे सबसे लास्ट में. ग्रेटिंग इज दिस.
means there are thousands of slits. बहुत सारी स्लिट्स को एक ही जगह पे आप एक के बाद एक रख दीजिए, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव। इसमें कितनी स्लिट्स हैं? 15,000 स्लिट्स आ देयर, या 15,000 स्लिट्स हैं। कितनी एरिया में? 1 इंच के एरिया में, 1 इंच की लेंथ में 15,000 कट लगे हुए हैं। बट अभी आप इसको सिंगल स्लिट कैसे मान लीजिए, द रिजल्ट्स विल चेंज अकॉर्डिंगली। Now you can see light is coming from left. Left से light आई, it will pass through this slit. इस slit से pass होगी, and then it will go in many directions. ये किसी भी direction में light जाएगी। Right now you can see this telescope is in front of the slit. इस समय जो telescope है slit के ठीक सामने है, means here. So मान लेते हैं कि सिंगल स्लिट है। लेट मी जस्ट रिप्लेस इट बाय सिंगल स्लिट एज अभी के लिए। सो दिस इज द स्लिट, एंड राइट नाउ टेलीस्कोप इज हियर। ओके, और वी आर लुकिंग ओनली दिस लाइट रे। हम उस लाइट रे को फोकस कर रहे हैं जो इधर को आ रही है, एंड वी विल सी द इंटेंसिटी हियर। जो भी इंटेंसिटी होगी वो हम यहाँ पे देखेंगे। दिस इज द आई। ओके, हमें यदि टिल्टेड वे में देखना हो, देन वी कैन रोटेट दिस टेलीस्कोप। इस टेलीस्कोप को रोटेट कर सकते हैं। ओके, रोटेशन एंगल पढ़ने का तरीका नीचे है, उसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं अभी। एंड अकॉर्डिंगली वी कैन सी अदर लाइट रेज आल्सो। जो लाइट रे इधर को जा रही है उनको भी हम देख सकते हैं। क्या करना है? टेलीस्कोप को रोटेट करते हुए यहाँ लाना है, एंड देन वी कैन सी ऑल द लाइट रे कमिंग इन दिस डायरेक्शन। हम उन लाइट रे को देख सकते हैं जो इस डायरेक्शन में है। दैट्स हाउ दिस सिस्टम वर्क। So we are having some parallel light ray from this. यहाँ से कुछ parallel light ray आ रही हैं। Okay. Let me remove all these things. And these light ray are going in these directions. These rays are going in this direction also. These rays are going in all directions. Okay. Either you can put a screen here, या तो यहाँ पे screen रख सकते हैं, so that you can see light on this screen. आप light को इस screen पे देख पाएंगे, और you can directly put a telescope in path of light. Telescope को रख लीजिए light के path में, and you can see directly light. या आप सीधे light को देख लीजिए. So this is the screen. I want to know intensity at this point. मुझे पता करना intensity इस point पे क्या होगी। This is some general point, जो कोई भी एक arbitrary point है। So the intensity at this point is due to all the light rays coming from this opening. इस opening से जितनी भी light ray आएंगी, उन सबकी combined intensity P पर जो भी होगी वो हमें पता करना है। So what is actually happening here? According to Huygens theory, plane wave fronts are coming from this side. यहाँ से plane wave front आ रहे हैं, and now this wave front, you can see only part of this wave front can go towards right. जो यहाँ पे source है इस wave front पर, से वो ही right की ओर, और the light coming from this sources can go further. जो light इन sources से emit होगी, these are the secondary sources. This light can go further. ये light जा सकती है आगे, and the light emitted by the remaining secondary sources is blocked by the slit. So ये वाले सारे source बेकार हो गए, ये वाले सारे source बेकार हो गए. We have only these many sources. कितने लेंथ में है? B लेंथ में.
Okay, these sources will emit light in all directions. सभी डायरेक्शन में से लाइट एमिट हो रही है. We want to know the intensity at some arbitrary point E. कैसे पता करेंगे? We need to know how many sources are there. पहले तो हमें पता करना होगा यहाँ कितने सोर्सेस हैं. कोई बता सकता है कितने सोर्स हैं बी लेंथ में? Anyone? So there was the you dimensioning in the grating piece. Sorry, दोबारा बताइए. The grating piece had some measurements. This many slits per square inch or something. So right now we are talking about just one slit. अभी हम सिर्फ एक ही स्लिट की बात कर रहे हैं. Which has a width of B. जिसकी width कितनी है? B. So in this width B, जो ओपनिंग है जिसका width B है, इसमें कितने सेकेंडरी सोर्स आ जाएंगे वेवफ्रंट के? So जो वेवफ्रंट यहाँ पर आया लाइट सोर्स से, इसका कुछ हिस्सा तो ब्लॉक हो गया ड्यू टू लाइट, ड्यू टू स्लिट. बाकी का हिस्सा ही यहाँ से आगे जा सकता है. So that will depend upon its amplitude. मैं ये नहीं पूछ रहा कि इंडिविजुअल सोर्स की लाइट कितनी है. राइट नाउ मैं आस्किंग ऐसे कितने सोर्स हैं यहाँ पर? Infinite. These are infinite practically, right? हर एक पॉइंट, एक्चुअली जितने पॉइंट उतने सोर्स. कितने पॉइंट है? Point has no dimension or they are actually infinite. So I want to know the sum of infinite waves at point P. ये सारी infinite waves P पर क्या intensity generate करेंगी ये पता करना था. Obviously that's a impossible task because there are infinite sources. ऐसे में क्या किया जाए? So this is the actual case. कितने sources हैं? Infinite. कितना गैप है दो सोर्स के बीच में? जीरो और नियरली जीरो और टेंडिंग टू जीरो. And we want to know intensity due to infinite sources. जो मैथमेटिक्स हम करते हैं that cannot deal with these kind of problems. कोई तरीका है इनफाइनाइट सोर्सेज का सम पता करने का P पर? देयर इज ए वे. एक तरीका है अभी भी. दिस इज द केस वी कंसीडर. हम मानेंगे नंबर ऑफ सोर्सेस आर दीज. n कोई नंबर है. कितना गैप होगा यदि हम n सोर्स मानते हैं? दो सोर्सेस के बीच में कितना गैप आएगा? If I assume that there are B by n. नियरली अप्रोक्सीमेटली करेक्ट. एग्जैक्टली आपने कुछ मिस किया है अभी. सो दिस इज द स्लिट. स्लिट ये है. मान लीजिए दो सोर्स मानते हैं और n इजिकल टू 2. यदि n इजिकल टू 2 मानेंगे सो पहला सोर्स आप यहां मान सकते हैं, दूसरा सोर्स यहां मान सकते हैं. कितना सेपरेशन है? b, राइट. सो यदि n इजिकल टू 2 है, दो सोर्सेस के बीच सेपरेशन यदि मैं उसको डेल्टा कहूं, यहाँ पे डेल्टा कितना है? 2. सो डेल्टा इज इक्वल टू v. यदि तीन सोर्सेस माने तो तीन सोर्स के लिए दो यहाँ पर एक बीच में रख सकते हैं सिमेट्रिकली. कितना सेपरेशन हुआ? n इज इक्वल टू 3 के लिए डेल्टा कितना है? b by 2. P by 2.
Yes, sir. यदि मैं 4 सोर्सेज रखूं तो क्या तरीका है रखने का? Then d by 3 सर हो जाएगा. Yes, sir. Got it. एक यहाँ रख लीजिए, एक यहाँ रख लीजिए, दूसरा यहाँ रख लीजिए, इक्वल डिस्टेंस पर. कितना है डेल्टा? b by 3. और यदि n सोर्सेस है तो डेल्टा कितना होगा? b by upon n minus 1. n minus 1. We are going to calculate diffraction due to this case. Obviously जो हमारा आंसर होगा that will be function of n. वो n पे डिपेंड करेगा. And this is what we can do in real life. ये real life case, actual case. How do we go from this case to this case? यहाँ से यहाँ जाने का क्या तरीका है? Agree? If you take limit n tends to infinity, क्या होगा? कितने सोर्स हो गए यार? Infinite. क्या सेपरेशन हो गया दो सोर्स के बीच में? b upon infinite 0. Right? So this is the technique we will use here. हम एक फाइनाइट केस के लिए स्टडी करेंगे और जब हमें रिजल्ट मिल जाएगा then we will just put or just take the limit n tend to infinity and we will get the actual case. हमें एक्चुअल केस वाला आंसर मिल जाएगा. ये टेक्निक यहाँ ही नहीं, फिजिक्स में भी, आपके इंजीनियरिंग की हर ब्रांच में, whenever you deal with divergent cases, जब आप इस तरह के केस से डील करते हैं, यही एक स्टैंडर्ड टेक्निक है. तो सेम थिंग वी आर गोइंग टू अप्लाई. हाउ डू वी लोकेट दिस पॉइंट P? इस पॉइंट P को कैसे लोकेट किया जाए? एक तरीका तो ये है that you define this as a baseline. आप इसको बेसलाइन मान लीजिए जो स्लेट के बीच में से होकर जा रही है. एंड स्टार्ट मेजरिंग डिस्टेंस फ्रॉम हियर. यहाँ से डिस्टेंस मेजर करना शुरू कीजिए. एंड यू कैन से दिस नंबर डिफाइंस द पोजीशन ऑफ P. बेस से आप कितनी दूर पर है वो आपकी P की पोजीशन को बताएगा. बट सिंस ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, we usually do not follow this concept. हम इसको फॉलो करते नहीं है. And you have seen in the video also, we are not at all interested in capital D. ना हम capital D में interested हैं. We are not at all interested in small y. We use some other method to locate P. P को locate करने का method अलग है. We actually calculate how much angle is made by, लेट अस से यहाँ पे कोई टेलीस्कोप रखा है. टेलीस्कोप का इस बेस लाइन से कितना एंगल है? यदि टेलीस्कोप इसके फ्रंट में है, आई कैन से द एंगल इज 0. यदि टेलीस्कोप एक इंक्लाइंड एंगल पर है, लेट अस से टेलीस्कोप इस लाइन के अलोंग है, दिस लाइन, हम यहां से देख रहे हैं चीजों को, और ये एंगल यदि 45 बनता है, देन आई कैन से दैट हम 45 डिग्री पर देख रहे हैं. Okay? So if we want to know intensity at P, we will just see how much is the angle made by horizontal line from the P. यदि ये एंगल थीटा है, हम कह सकते हैं we are looking at angle theta. So theta is something which defines the position on the screen. हम थीटा के रेस्पेक्ट में पता करेंगे कि क्या इंटेंसिटी मिलेगी. So when we say theta is equal to 0, जब हम कहते हैं थीटा is equal to 0 पे इंटेंसिटी पता कर रहे हैं, उसका मतलब है हम स्लिट के ठीक सामने की इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं. If we say theta is equal to 10 डिग्री, मतलब हम हॉरिजॉन्टल से 10 डिग्री के एंगल पे देखना चाह रहे हैं क्या इंटेंसिटी है. मैक्सिमम एंगल कितना हो सकता है इस केस में? यदि हम बहुत दूर की बात करें, यहां कहीं की, इट मे बी लेट अस से 80 डिग्री. और मैक्सिमम एंगल कितना जाएगा? यदि सबसे ज्यादा भी करेंगे तब भी थीटा मैक्सिमम इज हाउ मच? 90 डिग्री. 90 डिग्री मींस
दिस, बिल्कुल स्लिट के ऊपर ही पहुंच गए आप। सो दिस इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, ये कभी पॉसिबल नहीं है। 89 का मतलब दिस एंगल, ओके। सो वी कैन हैव मैक्सिमम थीटा 90 डिग्री, मिनिमम कितना हो सकता है थीटा? सबसे नीचे की ओर -90 डिग्री, और 0 का मतलब है स्लिट के ठीक सामने। सो वी विल कैलकुलेट इंटेंसिटी विद रेस्पेक्ट टू थीटा। हम थीटा के रेस्पेक्ट में इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे, किसी पर्टिकुलर थीटा पर इंटेंसिटी कितनी मिलेगी, ओके। So let me again design the same slit. ये slit है हमारा, okay, and we want to know intensity at some point P. ये कोई स्क्रीन मान लीजिए आप, हमें किसी पॉइंट P पर इंटेंसिटी पता करनी थी, okay, and we assume that there are n sources. हमें भी मान के चलना है कि हमारे पास n सोर्स। कैसे रखे जाए इन n सोर्सेस को? पहला तो किनारे भी रख सकते हैं आप, फर्स्ट इज हियर, लास्ट वाला इस किनारे पर होगा, एंड बाकी के n-2 इक्वली स्पेस कर सकते हैं। सो लेट मी से हियर 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 हियर। सो इन दिस डायग्राम n इज इक्वल टू हाउ मच? 1 2 3 4 5 6। ये n इज इक्वल टू 6 के लिए हम बना रहे हैं, ओके। लाइट विल ट्रेवल फ्रॉम ऑल दिस 6 सोर्सेस इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में लाइट जाएगी। P पर जो लाइट पहुंच रही है that is this, तो ये लाइट्स होंगी, ओके, एंड ड्यू टू अदर आल्सो, इनसे भी जो लाइट आ रही है। ऑल दिस सोर्सेस आर कोहेरेंट, सभी कोहेरेंट है बिकॉज दे आर कमिंग फ्रॉम सेम वेव फ्रंट, सभी एक ही वेव फ्रंट से आए थे। बट आर दे इन सेम फेज हियर आल्सो? जब ये P पर पहुंचते तब भी क्या सब सेम फेज में होंगे? No, sir. No, Path sir. difference will be there. देयर विल बी सम फेज डिफरेंस। वो फेज डिफरेंस क्यों आ रहा है? सो लेट मी से दिस इज सोर्स 1, इसको सोर्स 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, 3 एंड लास्ट वाला nth सोर्स है, ओके। S1P is the path traveled by light coming from S1. S1 से जो लाइट चली है उसका पाथ कितना था? S1P। S2 से जो लाइट चली है क्या उसने भी सेम पाथ ट्रेवल किया है? It has traveled, That's true. थोड़ा सा पाथ एक्स्ट्रा ट्रेवल किया है। यदि ये पॉइंट थीटा एंगल पर है, यदि ये पॉइंट हॉरिजॉन्टल थीटा एंगल बना रहा है, आई कैन से दैट दीज लाइट रेज आर एट थीटा एंगल। मैं कह सकता हूँ ये सारी लाइट थीटा एंगल पर है। और लेट मी ड्रॉ वन मोर लाइन, एक लाइन और ड्रॉ करते हैं। आई एम गोइंग टू ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम S1। मैं S1 से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, बाकी सभी लाइंस पर इनको भी ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं, इसको भी। हाउ मच इज दिस एंगल? ये एंगल कितना होगा फिर? लाइट रे का हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा। और लाइट रे के परपेंडिकुलर का हॉरिजॉन्टली परपेंडिकुलर से एंगल सेम, थीटा। S2 से जो लाइट चली इसने कितना एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल किया? The distance between S1 and S2 into sin theta. दिस वन। S3 से जो लाइट चली उसने कितना एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल किया? दिस मच।
S4 से जो चली उसने कितना पाथ, Sn से जो चली उसने कितना पाथ ट्रेवल किया है, कितना. Okay, so due to this extra path they have traveled some extra phase also. इन सब ने कुछ कुछ अपना एक्स्ट्रा फेज भी ट्रेवल किया होगा, एंड अकॉर्डिंगली you get some phase difference due to each source. Let us say path traveled by S1 is R. ये कोई तो डिस्टेंस होगी, let me call it R. Okay. Then कितना पाथ ट्रेवल किया है जो लाइट S2 से आ रही है उसने, बता सकते हैं? This is the zoom in version. So ये डिस्टेंस R थी, ये डिस्टेंस कितनी होगी जो S2 से चल रही है? B by n minus 1 in whole thing into sin theta plus R. So ये एंगल थीटा है और S1 S2 is how much? डेल्टा, राइट? दो सोर्स के बीच का सेपरेशन. सो हाउ मच इज दिस डिस्टेंस? ये डिस्टेंस कितनी है? यदि ये डिस्टेंस delta sin theta. डेल्टा साइन थीटा, राइट? यस सर. सो S2 से जो पाथ ट्रेवल हुआ है दैट इज R प्लस दिस मच एक्स्ट्रा. S3 ने कितना ट्रेवल किया होगा? R प्लस 2 डेल्टा साइन थीटा. S3 और S1 के बीच में 2 डेल्टा का डिस्टेंस है. और जो लास्ट है उसने कितना ट्रेवल किया होगा? Sn ने R प्लस n माइनस 1 डेल्टा साइन थीटा. और इसी को आप कह सकते हैं R प्लस b साइन थीटा, बिकॉज डेल्टा इज इक्वल टू b अपॉन n माइनस 1. ओके, ये पाथ ट्रेवल किए हैं. एंड बिकॉज ऑफ दिस एक्स्ट्रा पाथ दे हैव सम डिफरेंट फेज आल्सो. सभी एक ही फेज में नहीं पहुंचेंगे, हर एक में कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस होगा जरूर. S1 की वजह से वहां कितना फेज बनेगा? यहां पे सभी की सभी वेव्स कोहेरेंट थी. सो लेट अस से द इनिशियल वेव एट द स्लिट, जब लाइट स्लिट पे थी, देयर इक्वेशन इज दिस. E is equal to E sin omega t minus a r. ओके, सो r is equal to 0. यहाँ पे तो r 0 है, यहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हैं. हमने मान लिया है कि जब टाइम 0 था, या हम जिसको 0 टाइम कह रहे हैं, उस टाइम फेज भी 0 थी. ओके, और हमने जो एडिशनल फेज उसको 0 मान लिया है. दिस इज द वेव विच इंसिडेंट ऑन द स्लिट. ये वो वेव है जो इस स्लिट पे इंसिडेंट हुई थी. एंड फ्रॉम दिस वेव, इसी वेव से हमको ये सारे सेकेंडरी सोर्स बने हैं. बता सकते हैं जो सेकेंडरी सोर्स है इनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड क्या होगा? ऑल दी सेकेंडरी सोर्सेस आर मेड फ्रॉम दिस लाइट रे. इसी लाइट रे से बने थे. सो जो वेव फ्रंट पीछे से आया था राइट बिफोर स्प्लिटिंग, जो ठीक इसके पीछे का वेव फ्रंट था, उसकी इक्वेशन मैंने लिखी है. इसके ठीक आगे स्लिट से निकलते ही, मतलब आर में कोई सिग्निफिकेंट चेंज अभी नहीं हुआ है, देयर आर n रेज गोइंग इन डिफरेंट डायरेक्शन. टोटल n रेज है जो डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही है. हर एक का एम्पलीट्यूड कितना होगा? E is equal to E naught.
ई नॉट ही रहेगा या कम हो जाएगा? Sir, light rays getting emitted from the individual sources, S2, S3, S4. So what is the energy associated to each source? हर एक सोर्स से कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है? Yes, sir, amplitude should remain constant, but minus kr plus there will be some more path difference. No. See, there is no loss of energy. Energy का कोई loss नहीं है. और when we say that this equation represent the wavefront, जब हम कहते हैं कि ये equation wavefront को represent कर रही है, it means whatever is the energy corresponding to this wave, जो भी energy इस wave में है, it is cumulative of, it is summation of energy due to individual source. हर एक source से जो energy है, उन सबका sum करने से इतनी energy बनी है. कितना एनर्जी होगा? I is equal to E naught square, okay, or proportional to E naught square. और I can say the individual source, हर एक source में कितनी एनर्जी जा रही है और एम्पलीट्यूड कितना जा रहा है? E naught, यदि इनफाइनाइट सोर्सेस होते तो इनफाइनाइट, यहाँ पे n सोर्स है, so n, okay. So this whole amplitude is equally divided in all sources. यदि इंडिविजुअल सोर्स का एम्पलीट्यूड इतना मानेंगे, इट मींस दैट एनर्जी इज गेटिंग मल्टीप्लाइड एट एवरी वेवफ्रंट. तब तो ये हो जाएगा कि हर एक वेवफ्रंट पे एनर्जी 10 टाइम्स बढ़ जाएगी, व्हिच इज नॉट पॉसिबल एट ऑल. वो पॉसिबल ही नहीं है. ओके, सो दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल सोर्स. हर एक हर एक सोर्स के पास थोड़ी थोड़ी एनर्जी है. दे ट्रांसमिट दिस एनर्जी टू नेक्स्ट लेवल. ये अगले वेवफ्रंट पे एनर्जी सप्लाई करते हैं. टोटल एनर्जी ऑफ एनी वेवफ्रंट रिमेन्स कांस्टेंट. किसी वेवफ्रंट की एनर्जी किसी भी टाइम पर फिक्स है, वो लूज नहीं हो रही है. सो फॉर इंडिविजुअल सोर्स मैं लिख सकता हूं अभी स्लिट पर ही है. E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? E नॉट बाई n sin omega t minus kr, and obviously here r is equal to 0. ठीक है. Now what is the equation of each ray at p? जब p पर पहुंचेंगे क्या तब भी सभी का इक्वेशन सेम रहेगा? स्लिट पे थे तब सेम था, सारे सोर्स कोहेरेंट थे. बट नाउ ईच लाइट रे इज ट्रेवलिंग डिफरेंट पाथ. सभी के लिए r की वैल्यू अलग है. फॉर फर्स्ट source it is simply r, second source it is r plus delta sin theta, and so on. So what is the equation at p? p पर जो लाइट रे पहुंच रही है वो कितनी है? पहले सोर्स की वजह से लेट मी कॉल इट E1 प्लस दूसरे सोर्स की वजह से लेट मी कॉल इट E2, nth सोर्स की वजह से लेट मी कॉल इट En, वेयर E1 कितना होगा? उसका एम्पलीट्यूड टाइम्स ओमेगा टी माइनस कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है पहले लाइट ने? AR. E2 एम्पलीट्यूड साइन ओमेगा टी माइनस कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? K इंटू R प्लस डेल्टा साइन थीटा. सिमिलरली लास्ट रे ने एम्पलीट्यूड तो उतना ही है, साइन ओमेगा टी माइनस के R प्लस हाउ मच? n माइनस 1 डेल्टा साइन थीटा. दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट P. और जो एनर्जी होगी वो E स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी. क्या है ये समेशन? कर सकते हैं इसको. और दिस इज समेशन लाइक ये समेशन आपने पहले भी देखा होगा. साइन x प्लस वाई
प्लस साइन सम x प्लस 2y, ये कुछ इस तरह का समेशन है, राइट? किया है कभी इस तरह का समेशन इससे पहले? यस सर। कैसे कैलकुलेट करेंगे? साइन एन बीटा बाय 2 है, साइन बीटा बाय 2, साइन फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म बाय 2 वाला। सो यू रिमेम्बर सम फॉर्मूला, कोई फॉर्मूला याद है? तरीका बताइए, या ये फॉर्मूला आपको कैसे मिला? और यहाँ पे बीटा कितना है? सर वाई बीटा 1। वाई 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 वाई। ओके भाई, वैसे कैसे करते हैं इस तरह के समेशन को? प्रूफ नहीं बताया सर। आप बताइए कैसे कर सकते हैं? साइन सी प्लस डी। साइन सी प्लस डी करके आप पहले 2 करेंगे, फिर दोबारा साइन सी प्लस डी करके 3 का समेशन करेंगे एंड सो ऑन, इस तरीके से ना कर सकते हैं, आपको कुछ ना कुछ आंसर मिलेगा। या सर कॉस का मल्टीप्लाई डिवाइड। उससे क्या होगा? उससे तो और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा सर। सर एक पहला मिनट। वाला टर्म और लास्ट वाला टर्म अगर लेके करें तो शायद कुछ बन जाएगा। पहला लास्ट वाला, फिर सेकंड वाला टर्म, सेकंड लास्ट टर्म। क्या ये ज्योमेट्रिक सीरीज है? ज्योमेट्रिक सीरीज वाला अप्रोच लगा रहे हैं ना? नहीं, आप अरिथमेटिक सीरीज मान रहे हैं इसको, एक्चुअली अरिथमेटिक सीरीज तो नहीं है। आपको इस तरह का समेशन मिला है तो आप इस तरह का कुछ सोच सकते थे, लेट अस से प्लस 100। सो फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म कितना हुआ? 101। सेकंड टर्म एंड सेकंड लास्ट टर्म कितना हुआ? फिर से 101। थर्ड टर्म एंड थर्ड लास्ट टर्म फिर से 101, राइट? तो ऐसे कर सकते थे, बट साथ में साइन भी लगा हुआ है। इसलिए मैं कहता हूँ डू नॉट गेट इनटू लर्निंग द फॉर्मूला। फॉर्मूला याद करना छोड़िए, वो लाइफ गई आपकी। तरीके बताइए, ट्रिक्स बताइए, क्या क्या है आपके पास? या सर ओमेगा एक्स प्लस टी वाई माइनस को तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, इट विल टेक सम टाइम टू रिकॉल। आप बहुत सारे शायद तरीके यूज भी कर चुके होंगे। लेट मी यूज माइन, आपने भी शायद ये सब पहले कभी किया होगा। तो अल्टीमेटली वी नीड दिस समेशन। यहाँ तक किसी को भी डाउट है ये सब कैसे आया? सर ऊपर नीचे साइन वाई से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। साइन अपॉन साइन, उसके बाद सर साइन वाई बाय साइन वाई कर देंगे तो शायद हो जाएगा सर साइन y बाय 2 से डिवाइड करेंगे ऊपर नीचे। उसके बाद यस सर, यहाँ पे वही होगा। फिर इसे cos में चेंज कर देंगे। cos प्लस cos, cos माइनस cos। हाँ सर, तो शायद कैंसिल हो जाए। सर मतलब cos माइनस समथिंग cos में होगा। आई थिंक तरीका काम कर सकता है, आई डोंट नो, जस्ट चेक योरसेल्फ। लेट मी यूज वन मेथड। ये ऐसा नहीं है कि एक ही तरीका है इसको सॉल्व करने का। सो वी नीड दिस थिंग। थोड़ा सा पहले टर्म्स को सिंप्लीफाई कर लेते हैं और वी विल डू द सिंप्लीफिकेशन लेटर। आई वांट टू नो e। मैं e नहीं कैलकुलेट कर रहा, आई एम गोइंग टू कैलकुलेट समथिंग एल्स। मैं कुछ और कैलकुलेट करने जा रहा हूँ। लेट मी कॉल इट s और sigma। Sigma is this, e to the power I omega t minus kr plus e to the power I omega t minus kr minus k delta sin theta I
आई ओमेगा टी माइनस के आर माइनस हाउ मच n-1 k डेल्टा साइन थीटा। क्या फायदा हुआ इसको कैलकुलेट करने से? कैन आई से E is actually imaginary part of sigma? मानते हैं? ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका इमेजिनरी कंपोनेंट कितना होगा? टेक आउट इमेजिनरी कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट टर्म का इमेजिनरी कंपोनेंट क्या है? ओमेगा टी माइनस के आर। साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के आर। सेकंड का इमेजिनरी कंपोनेंट क्या है? साइन ओमेगा टी माइनस के आर माइनस के डेल्टा साइन थीटा, मींस ये वाली टर्म, राइट। थर्ड टर्म वाला साइन है, ये लास्ट टर्म है, राइट। So I can say imaginary component of this sigma is E. Okay. So what I'm going to do, I will calculate sigma. ये sigma calculate करेंगे और इसका imaginary component out कर लेंगे। ठीक है? क्या है sigma? sigma आप पहचानते हैं actually। I omega t minus k r तो as it is out है सारे में से ही। What is the remaining part? I k यहां से तो कुछ नहीं बाहर आएगा आपका, इट इज 0। यहां से कुछ बाहर आएगा माइनस आई के डेल्टा साइन थीटा। सेकंड से क्या बाहर आ रहा है? माइनस 2i के डेल्टा साइन थीटा। और nth टर्म में से क्या बाहर आ रहा है? n-1 i के डेल्टा साइन थीटा। पहचानते हैं सीरीज को? जीपी इट्स अ ज्योमेट्रिक सीरीज। सम कर सकते हैं सीरीज का? क्या सम होगा सीरीज का? एनीवन? तो कैसे सम करते हैं ज्योमेट्रिक सीरीज को? आर की पावर n-1 अपॉन r-1। ये कर सकते हैं आप, इसको ड्राइव भी कर सकते हैं, दो लाइन का डेरिवेशन भी है इसका, राइट। सो इनटू इट और वी विल डिस्कस इट इन नेक्स्ट क्लास। यहाँ पे हम इसके आगे नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ओके, तरीका सिंपल है, इसको सॉल्व कर लेंगे, कुछ भी आएगा जस्ट राइट इट एंड देन टेक द इमेजिनरी पार्ट आउट। इस पूरे इक्वेशन का इमेजिनरी पार्ट बाहर निकाल लीजिए, आपका ए हो गया। और आप अपने तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, फाइनल आंसर एक ही आना है। ओके सर। All right, so now you can leave. Thank you, sir.